Yes, so संज्ञान की बात फर्स्ट या ज्ञान की बात तो बहुत हो गई है और क्या ही किया जाए फिर भी एक क्लास या फिर लर्निंग इन ड्यू कोर्स ऑफ लर्निंग we have detailed everything possible in the class and you will also detail everything in course of revision है ना. But while doing revision try to do listing, a new process of listing है ना. Detailing happened in the class, now it's time to do more and more listing and engage yourself creatively in the process of listing है ना. Engage yourself creatively in the process of listing है ना. जैसे for example we have detailed historical materialism है ना. Historical materialism डिटेलिंग हमने किया है क्लास में या एनी अदर टॉपिक राइट. थिंकर्स का पहला टॉपिक है इसलिए याद आ रहा है. तो नाउ व्हाइल डूइंग रिवीजन यू विल रिवाइज फर्स्ट थॉरोली एंड देन जस्ट ट्राई टू लिस्ट सम डायमेंशंस लाइक व्हाट इज हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म. बताइए. कार्ल मार्क्स का डिस्कशन एंड कलर इज ऑल्सो रेड एक्चुअली. हाँ राइट. यस. What is historical materialism? Then theoretical antecedents. Theoretical antecedents. Antecedents of historical materialism. In every thought we started something like he draw inspiration from that thinker, he draw inspiration from that scholar. Yes or no? जैसे Max Weber draw inspiration from हाँ no Kantian tradition है ना. and Karl Marx draw inspiration from Hegel. yes ना. Hegelian tradition, Hegel से inspiration. then Feuerbach है ना. he borrowed concept materialism from Feuerbach and he borrowed historical idealism from Hegel, isn't it? तो theoretical antecedents of HM. then बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना. बेसिक कॉन्सेप्ट्स उधर हमने कई कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया है ना. हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में क्लास का कॉन्सेप्ट है ना. देन व्हाट कॉजेज चेंज लाइक कॉन्फ्लिक्ट इज मोटर ऑफ हिस्ट्री. ऐसे टर्म्स आए थे ना. राइट. सो you have to list such concepts, whatever basic conceptions, premises you have listed. So one liner so that you could retain. yes na. Then a stage age of historical materialism hai na, HM. and then criticism and then lastly relevance. right. So this is listing and as you move ahead try to mature this list, add something in this list. yes na. जैसे like in perspective we have studied Marxism in Indian society. yes na. तो relevance में although I had not discussed the point in paper 1 कि Marxist perspective is relevant to understand a rise of nationalism, लेकिन पेपर 2 में तो हमने डिस्कस किया है ना कि polarization of the have Britishers and the have not Indians, isn't it, prepare ground for rise of nationalism है ना. over the period of time, be that agrarian class or be that middle class or be that capitalist class, industrial capitalist class, tribals है ना, all experienced some form of discrimination and exploitation and over the period of time class homogeneity, all Indians right became homogeneous class, formed homogeneous class and mobilized against Britishers. yes ना. एक पॉइंट नोट किया था हमने पर्सपेक्टिव में
ठीक है, तो अब वो पॉइंट भी रेलेवेंस में अपन नोट कर देंगे. अपार्ट फ्रॉम, आई हैव डिस्कस मेनी पॉइंट्स ऑफ रेलेवेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट you can borrow from other topics and you can write here, है ना. AR देसाई का perspective I had discussed in tribes also, isn't it? Getting a point. तो from there you have to borrow कि भाई state policies, है ना, British state policies, colonial administrative segregation policy and all, right, part of superstructure as per compulsions of British capitalism, as per compulsions of British capitalism, be that administrative segregation policy or mercantile policy, all policies were implemented for what? For extraction of capital. Yes, na? Capital extraction ke liye, right? So this is how you have to, like, over the period of time, you have to add value from other topics as you move ahead, as you revise other topics. So try to add value from there. Right. Many students, become oriented to add value, unnecessary spending time on, too much time on current affairs or other, notes. In fact, they should be more and more inward oriented. Yes, na, and you should try to add value, reflecting on different concepts and theoretical strands and facts, related to different topics in syllabus itself. Isn't it? Because you have to write your answer in 150 words and 250 words. Right. You have very low scope. Yes, not to elaborate too much, right? You have to write, relevant facts, relevant, concepts. So do reflective activity, reflect on the syllabus, try to collect points, and first revision, second revision, try to mature your notes. Yes, na? Right. So this is how you have to do listing. Understood something, yeah? And this you have to apply in all topics. है ना? Detailing and listing. There are two processes in learning. We learn everything in detail, and in course of revision, we have to be concise, precise, and objective. है ना? That's the major problem. Majority of students, commit this mistake. In course of revision, they start referring to too many, notes, toppers notes, books, references, and again a new process of learning and maximization of content, है ना? And it becomes very difficult, to recollect everything in examination situation. By mind है ना, computer तो है नहीं. Although you spend too much time on computers, laptops, tabs, phones, अब उसका तो memory high है. Yes ना, you can save too much of, facts. बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, वो notes बनाते रहते, लैपटॉप पर ऐड करते रहते, without thinking कि whether I would be able to reflect all these points or not in examination hall. Yes ना? So revision का responsibility होता है being concise, precise and objective, isn't it? And this is what I say, process of listing, right? And this requires lots of patience, right? Perseverance, patience, discipline on a study table, जो कि सब में नहीं होता है. ये भी fact है. Yes ना, जिसमें होता है वो exam crack कर जाता है. Yes ना, right? More time you spend on a study table, isn't it? More you will do listing, right? Time and again, adding something in that list by doing backward linkages, forward linkages, being inward oriented on syllabus, printed notes, isn't it? Right? And you have to optimize that list over the period of time intellectually, right? तो ऐसा orientation रखिएगा. Similarly, if we talk any topic in paper 2, है ना, जैसे GS घूरिए perspective, suppose GS घूरिए, right? So GS घूरिए perspective में first Indology. What is Indology? Yes na? Then again antecedents, intellectual antecedents, कहीं से तो आया ना, right? Some historical antecedents like Asiatic society and all, है ना? Historical antecedents. Then Indic, Indologist and Orientalist, Indologist. अरे yes ना, यही sequence है ना, right? So this is what you have to list. इसी को list करना है, one liner listing, right? Then GS Ghurye's Indological perspective, Indology. Then his Indological perspective on caste, Indological perspective on tribe, Indological perspective on rural, urban, Indological perspective on
religion, isn't it? Then criticism, and lastly, relevance, isn't it? Just one liner, one liner. First, try to memorize that list. है ना, that list will help you reflect the detail. डिटेल को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा. यस ना. एंड राइटिंग इज नॉट अ मैकेनिकल एक्ट कि बस टेस्ट पे टेस्ट लिखे जाओ टेस्ट पे टेस्ट. दैट इज नॉट जस्ट मैकेनिकल एक्ट कि टेस्ट लिख के हम, है ना. इट्स मोर रिफ्लेक्टिव एक्ट. एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन स्टडी टेबल. रिफ्लेक्शन इन्हांस करने के लिए, रिफ्लेक्टिव एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, रिफ्लेक्सिविटी बढ़ाने के लिए, यू विल हैव टू list and revise that list, and from that list you will reach to the detailed points that you have noted in your booklets. Yes ना, जो आपके बुक्स में है, बुकलेट्स में है, राइट, आपके नोट्स में है, तो उस पर आप पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट. यस ना. तो इस तरीके से अभी हर एक टॉपिक पर जो भी हमने पहले डिस्कस किया है क्लास में, लिस्ट बनाइए. एंड पहले वो दैट लिस्ट शुड बी मेमोराइज, दैट शुड बी इन योर कॉन्शियस माइंड, इजंट इट? एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट दैट लिस्ट इन एग्जामिनेशन हॉल, यू विल डिटेल समथिंग, है ना. वो डिटेलिंग आप कर लेंगे, है ना. उसके लिए जरूरी है लिस्टिंग, राइट. और यही अब ये पेशेंस चाहिए होता है. मतलब मैंने आई हैव सजेस्टेड यू, रिक्वेस्टेड यू ऑल्सो कि फाउंडेशनल लर्निंग में मटेरियल क्वेस्ट होना चाहिए, है ना. मटेरियल ओरिएंटेशन, जितना मैटर ह्यूमनली पॉसिबल हो हमने कलेक्ट कर लिया. आफ्टर फाउंडेशनल लर्निंग स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, है ना. स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन शुड बी देयर. एंड दैट ओरिएंटेशन दीज डेज, है ना, लैकिंग एक्चुअली, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल. दिस इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम. मैं किसी इंडिविजुअल का दोष नहीं दे रहा हूँ, है ना. Too much of distraction, isn't it? Hyper realities created by topper stock, है ना, director stock, right? YouTube, social media, Instagram, right? Here at ORN market, too much of study material, isn't it? Right? And majority of students are always oriented towards matter, material. कि कोई toppers material, कोई. And the task which you have to do on your study table, you have to make short notings, right? अब that task भी generally outsource कि चलो कहीं से मिल जाए मुझे, yes ना, कहीं से मिल जाए, किसी टॉपर का बनाया हुआ मिल जाए, yes ना. अब वो टॉपर का बनाया हुआ है, that functional for that topper actually. You will have to participate in this process. You should participate in this process of noting, listing the things, isn't it? Self, learning, thinking, brainstorming. Yes na, this is a spiritual act, kind of meditational act. Yes na, the way you do meditation, isn't it? Reciting, right, Hanumanji or Sai Ram, or isn't it? Similarly, you have to recite these points written in your list every time you revise, isn't it? And everything must be there in your conscious mind. At least this list should be there in your conscious mind. See, whenever somebody interacts with you, you are able to reply 5 points. Yes na. मतलब here onward, after completion of foundational course, be that general studies का foundation और sociology का foundation, ठीक है. Like you can write workbook, you can write answer, you can talk to me, you can come to me. But over the period of time, try to teach yourself. That attitude and guts should be there to teach myself. Because this is a vast ocean, isn't it? Right. अब इसमें आपको रिकलेक्ट करना है, स्टेबलाइज करना है अपने आप को, तो वो स्टडी टेबल पे ही होता है. अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल स्टडी टेबल भी नहीं है ना. लाइब्रेरी टेबल है. एंड लाइब्रेरी टेबल में देयर आर ऑलवेज सम सेकंड पर्सन सिटिंग बिसाइड यू विद सम न्यू नोट्स एंड न्यू बुक्स, न्यू टॉक्स. यस ना, रिक्रिएशनल टॉक्स एंड ऑल, इजंट इट? थोड़े समय के लिए रिक्रिएशन से बाहर हो जाइए, है ना. जिंदगी भर रिक्रिएशन होता रहेगा, है ना. मतलब क्रिएटिव वर्क के लिए पूरा लाइफ है ना. अभी फॉर द टाइम बिंग ये सब रिक्रिएशनल नहीं होना चाहिए. इवन इफ यू स्टडी इन लाइब्रेरीज, तो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, राइट, एंड सेल्फिश ऑल्सो, राइट. At present time, your orientation should be very selfish and self-orientation, right? कि मुझे अपने को मैच्योर करना है, कंपटीशन है, यस ना. अब कोई आके सामने 2 किताबें रख देता है, अब उसको देख के आप कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, राइट. तो पहले जो आप काम कर रहे हैं वो काम करिए, है ना, राइट.
तो ऐसा अंडरस्टूड आई गेस या ये लिस्टिंग का प्रोसेस समझा आपने. सिमिलरली अभी जैसे अभी लास्टली हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना, लैंड रिफॉर्म है ना, या फिर क्लास मिडिल क्लासेस, इजंट इट, बहुत सारे टॉपिक्स. लैंड रिफॉर्म लिस्टिंग करेंगे. व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म है ना, फॉर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, 5 फॉर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट? देन इट्स limitation, मतलब its contribution and limitation, function dysfunction analysis, isn't it? And lastly, like this has continued in form of, as I said, suggested you कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं भूदान, ग्रामदान, isn't it? Movement and currently, more crop for drop, soil testing labs, yes na, opening, science agriculture science centers है ना, इन एवरी ब्लॉक. टारगेट है गवर्नमेंट का कृषि विज्ञान केंद्र एज अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एजुकेशन ऑफ फार्मर्स, इवन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. सो ऑल दिस कम्स अंडर लैंड रिफॉर्म, बिकॉज लैंड रिफॉर्म इन ब्रॉड अपन ने डिस्कस किया था नैरो सेंस में एंड ब्रॉड सेंस में. लैंड रिफॉर्म इन नैरो सेंस एंड ब्रॉड सेंस, राइट? तो नैरो सेंस में तो सीधा एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एंड ब्रॉड सेंस में टोटल इंप्रूवमेंट इन लैंड सिस्टम. तो आज सरकार काम कर रही है कि नहीं, है ना? तो ये सब आप पढ़ते हैं ना जीएस में कि जो भी चल रहा है गवर्नमेंट में, राइट? स्टेट लेवल पर भी यू सी मेनी इनिशिएटिव्स टेकन बाय स्टेट्स, इजंट इट, फॉर इंप्रूवमेंट इन लैंड सिस्टम, राइट? तो ये सब लिस्ट कर लेंगे लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क में. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू लिस्टिंग. गेट इट? फाइन. सी जैसे मिडिल क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि व्हाट इज मिडिल क्लास, देन यूरोपियन मिडिल क्लास एंड इंडियन मिडिल क्लास. यस ना, शुरू में ही डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूरोप. यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन आवर सोसाइटी मिडिल क्लास emerged with अरे colonial interventions, है ना, इंस्टीट्यूशनल वेस्टर्नाइजेशन. यस ना, तो आगे भी colonial legacy continued. मिडिल क्लास contributed contributed to consolidation of British rule in India. इंडिया में ब्रिटिश रूल के कंसोलिडेशन में मिडिल क्लास ने कंट्रीब्यूट किया. देन फिर नेक्स्ट एंटेगनिज्म, एक लिस्ट पॉइंट कर लेंगे. एंटेगनिज्म, राइट? मिडिल क्लास एंटेगनाइज टू ब्रिटिश रूल, गेटिंग अ पॉइंट ऑफ. देन कंट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंस, यस ना, राइट? देन further, expansion of middle classes after independence, then rise of rural middle class, yes na, then rise of tribal and scheduled caste middle class from tribals and scheduled caste groups, yes na, then middle class after LPG, yes na. अब क्वेश्चन मान लीजिए आ गया मिडिल क्लास कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग या राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो विल नॉट यू बी एबल टू राइट समथिंग? अरे भाई, डिफाइनिंग मिडिल क्लास, देन मिडिल क्लास emerged with westernization, technological westernization, institutional westernization, ideological westernization, isn't it? In the beginning contributed and then antagonized and contributed to nation, rise of nationalism, and then after independence, this is middle class, which has contributed to nation building. Rural middle class, green revolution, nation building. Urban middle class, science and technology, है ना, medicine, engineering, space technology, yes ना, entrepreneurship, startups, post LPG, yes ना, right? तो don't you think these are contributions of middle class? अब इसके लिए कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत है, right? Middle class, and हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि middle class has contributed in this manner. Media, middle class contribution to media, yes ना, right? Fifth pillar of democracy, or fourth pillar of democracy, yes, right? हालांकि हम फोर्थ से आगे निकल गए हैं, फिफ्थ हो गए, राइट? सो दैट इज अंडरस्टूड आई गेस. या, this is what you have to do in every topic, and now it's time to be a spiritual, yes na, a spiritual in your orientation while doing revision, reorganization. Revise everything in detail, learn in detail, reorganize, do listing, isn't it? And over the period of time, right, try to add some value reflecting on different topics, yes na, facts about Indian society, isn't it? Revise, reorganize, reflect, yes na, right? And then you will be mature enough for performance, writing answer in examination hall, yes na, right? तो ऐसा करिए
हो जाएगा. एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न, तो कुछ नहीं है. आंसर राइटिंग इज, इफ यू आर अ गुड लर्नर एक्चुअली. प्रॉब्लम क्या होता है, सॉरी, अभी प्रॉब्लम क्या है कि all these subjects, history, geography, polity, sociology, society, yes, na, majorly related to humanities, right? And 2011 onward CSAT, and then 13 में syllabus change, CSAT effect and all. Like after decline of IT sector by 2009-10, subprime crisis in Europe, and number of engineers became oriented. पहले भी थे engineers, science graduates, but उसके बाद अचानक से sudden, and engineers in their due course of preparation from day one, learning something and testing equation, maths ka equation, physics ka equation. So they were habituated, in habit of learning, testing. Yes, na? And this coaching world also got opportunity to start a new business. Isn't it? That class, test. Yes, na? And that basically suited to this large number of engineers, those who were in habit of, yes, this process, ki every day, completing something, right? Some mathematics का chapter and then testing. अब humanities में equation तो है नहीं. अरे yes or no? Humanities में equation नहीं है. It's about knowledge and wisdom. Yes ना? अब that process was applied here also. कि भैया class करो 5 days, then weekly test, then monthly test, then टेस्ट सीरीज. इस प्रोसेस में ऐसा ट्रैप किया कि जो स्पिरिचुअल एक्ट था ह्यूमैनिटीज का लर्निंग, इज इट मतलब कंप्लीटिंग, देन मेकिंग शॉर्ट नोट्स, इज इट देन रिवीजन, एंड लास्टली परफॉर्मेंस. यस ना? अब वो हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया. तो विदाउट appropriate learning, students are putting themselves in testing situation, too much testing situation. Yes, no, without learning, isn't it? Without completing the syllabus, without having that reflexivity to correlate, interrelate things, correlation, backward forward linkages, correlation, interrelation, etc. Right? And तो इसमें प्रॉब्लम हो गया. Right? Mostly students will see dissatisfied lot. सर पढ़ रहा हूँ बट आंसर नहीं. अरे भैया पहले पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स, एंड देन टेस्ट योर सेल्फ. ठीक है, लिखते रहिए समथिंग फ्रॉम राइट बिगिनिंग, इजी राइटिंग, isn't it? And writing just for practicing कि whatever I'm learning I'm able to reflect that. Yes ना? पता चलता है कि आपको, आपने whatever you learned you wrote, and the evaluator gives you 10 more suggestion, and you get like tensed कि भाई मेरे को इतना नहीं आ रहा है. तो ऐसा नहीं, इस मामले में थोड़ा मैच्योर होना है. ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, राइट? एंड इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ. ये साइंस का इक्वेशन नहीं है. यस ना? एंड ह्यूमन लाइफ इज टू कॉम्प्लेक्स, इज इट? हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, यस ना, पॉलिटिकली, राइट, सोशियली, इन्वायरमेंटली, यस ना. बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ह्यूमन लाइफ में. और हम चाहते हैं कि बस एक सब्जेक्ट पढ़ के और हम एक्सपर्ट हो जाए आंसर राइटिंग के. हिस्ट्री हो गया लेकिन हिस्ट्री का आंसर नहीं लिख रहे. ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का भाई कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी कोई आइसोलेटेड है या हिस्ट्री आइसोलेटेड है? सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब आइसोलेटेड नहीं है. इट्स अबाउट ह्यूमंस. यस ना? एंड ऑल आर इंटर रिलेटेड, सभी इंटर रिलेटेड है. तो विजडम भी तो होना चाहिए ना, वो विजडम होना चाहिए. इफ यू आर एनालाइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, कोई क्वेश्चन आ गया जैसा कि आजकल आ रहा है रीजन से क्वेश्चन, राइट? लास्ट ईयर पुरवैया एंड ऑल, इजंट इट? तो यू विल हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का जियोमॉर्फोलॉजिकल है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर, राइट, गवर्नमेंट गवर्नेंस पॉलिसीज, isn't it? Right? Then
historical, backwardness, pauperization, proletariatization because of zamindari system. Yes, na history. Getting a point. Then society, right? Caste conflict, Naxalism, Maoism, isn't it? Getting a point or not? Right. So inefficiency in bureaucracy, lack of probity in bureaucracy. Yes, na? Jharkhand, Bihar में देखेंगे every time some scams का है ना, right? Political system also, political bureaucratic inefficiencies, right? So like you will have to have reflection on different dimension of human life. Human life में क्या है, मतलब कोई isolated तो है नहीं human life. Yes ना, and all these subjects relates to humanities, right? Touches human life. Yes na. So you should have such orientation, right? I mean a complex but hybrid, like orientation, isn't it, to solve the problem. ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड कि बस एक सब्जेक्ट पढ़ लिया इकोनॉमी और बस इकोनॉमी से सॉल्यूशन, जीडीपी, जीएनएच, है ना, केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कर सकते, राइट? ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमनिटी सब्जेक्ट इज मोर क्वालिटेटिव. यस ना, राइट? क्वांटिटी है, फैक्ट्स है, लेकिन फैक्ट्स तो एवरीबडी राइट्स. उसके बियॉन्ड हाउ मच क्वालिटेटिव यू आर इन योर एनालिसिस, इन योर इंटरलिंकेजेज, दैट मैटर्स एक्चुअली, है ना. उस वही इफेक्ट लेकर आता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स. यस ना, राइट? तो दैट्स इज. तो ऐसा ओरिएंटेशन रखिए. आंसर राइटिंग में पहले भी मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है, लाइक कि इन एनी आंसर the first thing to do, any question, when you are attempting question, the first thing to do is to clarify the concept, the terms in introduction. And if you have to write, suppose the term sociology comes multiple times in answer, every time you have to clarify the sociology. Yeah, जैसे आ गया कि emergence of sociology, one question. Sociology and common sense, second question. Yes, Nadu, you have to clarify what is sociology. One line. Systematic and scientific study of society. Isn't it? It induced by modernity and social change. Modernity relates to, yes na? Introduction का purpose क्या है? Clarifying the concepts, the terms. Isn't it? Right. And then in main body, some deeper, investigation and analysis. The factors related to modernity. Yes na, Renaissance, enlightenment, है ना? Embodied in revolutionary events, है ना, उसको डिटेल करेंगे. Getting a point or not, right? अब while discussing, although at the time when we discussed this topic, I did not refer too much about Karl Marx's contribution to rise of sociology, Emile Durkheim contribution to rise of sociology, Max Weber contribution to rise of sociology. But after completing syllabus, you know something? अरे yes or no, right? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो कार्ल मार्क्स का व्यूज, पर्सपेक्टिव, yes na, right, in sociological literature, his contribution. So one line, two line, you will refer all those thinkers now. I did not refer them in detail, right, in the beginning, but after completing, thinkers, now you have something to refer them. कि Max Weber, है ना, like rational transformation sought attention of Max Weber, and he inquired into rationalities, meanings and orientation involved in human action, interaction, isn't it? Right. Getting a point or not? तो अब यहां हम क्या करेंगे, मतलब again while writing answer of topic 1, I will reflect on all other topics of syllabus and possible points I will try to embed in that answer. Got this point or not? Yes na? I will not remain compartmentalized in that topic. उस topic में मैं compartmentalized नहीं रहूंगा. Yes na? I have to add something from other units. Got this point or not? Right. So this is how you have to write main body of the answer. Isn't it? Right. In main body, what? Introduction में clarify the concept, theories and facts. Introduction, right? कितने parts? Answer अपन लिखते तो क्या होता है? Introduction first. Introduction, then main body, then conclusion, right? Majorly introduction में the basic concepts of the question to be clarified. Main body में first thesis, जितना thesis बोले तो viewpoint.
viewpoints, theoretical viewpoints, or if you are not able to think in some question, maybe theoretical viewpoint, then a structural viewpoint, a structural and phenomenological. Phenomenological. Majorly after completing syllabus you would have realized कि भैया कुछ नहीं है, ये पूरा syllabus dominated by a structuralist और action theorist. अरे yes or no? Action theorist बोले तो phenomenologist, yes ना? Action, interaction and those who talks about phenomena, yes ना? तो if in some question I am not able to reflect on reflect on perspectives, thinkers, then I will reflect a structure. I will do a structural analysis. Yes ना? Caste का structure, tribals का structure, rural structure, agrarian structure, urban structure, industrial structure, ये सब है ना syllabus में. Yes ना? So this is what I will do in main body. Yes ना? Thesis में. Thesis बोले तो viewpoint. कैसा viewpoint? अरे thinkers और perspective. Viewpoint based on thinkers or related to thinkers or perspective, and if not then structural. Yes or no? Family, economy, polity, education, religion. पता नहीं आप लोग सुनते कि नहीं कुछ उन बच्चों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह में क्लियर कर गए. कभी किसी ने क्वेश्चन किया था, कुछ वो आए थे प्रदीप, तो कि सर अगर कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है तो क्या करें, तो उसका रिप्लाई था अरे कुछ नहीं आता है तो फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन, जहां कुछ नहीं आता बस स्टार्ट कर दिया ये फंडा. यस ना? राइट, बिकॉज दीज आर प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर्स. ये क्या है? प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर है. यस ना? दीज आर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, दीज आर प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर्स, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन, एंड देन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स. थॉट करते जाइए कास्ट तक. यस ना? इंडियन सोसाइटी में रूरल, एग्रेरियन, गेटिंग अ पॉइंट. दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो थीसिस लिखेंगे. देन एंटीथीसिस बोले तो ऑल्टरनेटिव थीसिस. एंटीथीसिस बोले तो ऑल्टरनेटिव थीसिस, मतलब उसका कुछ अल्टरनेटिव तो होता है ना. अरे यस और नो? कार्ल मार्क्स का अल्टरनेटिव है कि नहीं है? अरे भाई कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल हु ओन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट हैव क्लास एंड दोज हु डू नॉट हैव नॉट क्लास. ऑल्टरनेटिव थीसिस किसने दिया? मैक्स वेबर ने. कि नो, class refers to group of people having similar position in market situation and by virtue of market situation, market condition, similarity in life chances. Yes ना? Alternative thesis है कि नहीं? पूरा while doing revision try to inquire into alternative thesis. Yes ना? कि alternative क्या होगा? अरे yes or no? According to Karl Marx, society is stratified into have class and have not class. Right? And according to Max Weber, alternative thesis, yes, he disagreed to economic determinism. Max Weber disagreed to economic determinism reflected in Karl Marx's perspective of stratification and argued that society is stratified into class, status group and parties. है ना? On the basis of economy, status and power. मतलब wealth, status and power. Yes or no? अरे yes ना? So that is alternative thesis. Understood, I guess? Yes na? Right. Men and women का stratification, alternative thesis of radical feminist. अरे yes or no? Right. कार्ल मार्क्स को केवल दिखा कि have class and have not class, लेकिन feminist ने कहा कि नहीं, men and women stratified and their thesis. अपन ने डिस्कस किया है ना सब. Right. So this is, तो किसी भी आंसर में अपन को क्या मेन बॉडी में बहुत ज्यादा इसको नहीं भागने का, मतलब इसको कंट्रोल करना. Thesis and alternative thesis. Thesis and alternative thesis. Thesis will be theoretical, perspective based or structural, phenomenological. Right? Action based, action theorist का reflection. Max Weber, Talcott Parson. Yes ना? Right. Talcott Parson bridges the gap between positivist and non-positivist. तो उसको भी अपन, है ना? System of action याद होगा. Right? Social system क्या है? System of action. Isn't it? So that is. And lastly, conclusion में क्या? कंक्लूजन में सिंथेसिस. राइट? बोले तो रेलेवेंस. यस ना? सम रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? समथिंग, यू नो,
लाइक पॉजिटिव नोट, है ना, रेलेवेंस कि डिस्पाइट एबव लिमिटेशन, मार्क्सियन थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल और मार्क्सियन थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, हाँ, इज स्टिल ग्लिटरिंग इन द गैलेक्सी ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट. मतलब कि थोड़ा एप्रिसिएशन, एप्रिसिएटिव ओरिएंटेशन, इजंट इट, एंड राइटिंग सम पॉइंट्स ऑफ रेलेवेंस. अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई गेस वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 10 रेलेवेंस. अब वो नहीं लिख सकते आप आंसर में, उसमें जो आपको ह्यूमनली पॉसिबल हो, 2-3 रेलेवेंसेस, जस्ट टू रिफ्लेक्ट समथिंग ऑफ everything. Exam is all about writing something of everything, because you cannot write everything. Yes, na, India is still a developing society, है ना, right? India is still a developing society, limited resources. Yes, na, and this testing is to test a personality, which can, solve the problem using limited, words, limited रिसोर्सेस. यस ना, लिमिटेड रिसोर्सेस. ऐसा नहीं है कि आपको डीएम बना देंगे तो बस आप उधर डेली बॉलीवुड एक्टर्स को बुला रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. यस ना, राइट, ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फंड ही नहीं है, लिमिटेड फंड्स है. यस ना, मतलब मेजर पार्ट ऑफ कंट्री में तो आज भी फंड क्रंच इज देयर, है ना, सेंट्रल टू नॉर्दर्न स्टेट्स, इजंट इट. जितना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स करना चाहते काम उतना नहीं कर पाते, है ना. कई बार बात करने पे लगता है कि सर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी, बट दे हैव टू प्रायोरिटाइज, राइट. तो एक पर्सनालिटी विच कैन ऑप्टिमली यूज द रिसोर्सेस, नॉलेज मैट्रिक्स इन मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स, इजंट इट, दैट पर्सनालिटी इज रिकमेंडेड. ये केवल ज्ञान का टेस्ट नहीं है, दिस इज टेस्ट ऑफ विजडम ऑल्सो. यस ना, कोचिंग का फायदा ज्यादा होता है इसको ज्ञान के टेस्ट बनाने में, है ना, राइट. तो ज्ञान का पूरा कोर्स बना दिया जाता है कि चलो ये लो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं आपको कि यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी. यस ना, यू मस्ट नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट. ए स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विल नॉट बी कंसर्न अबाउट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. Yes, na, environmental impact assessment. He would be responsible as a executive engineer of posted in particular district. He will be responsible for, constructing roads or buildings or physical infrastructure. उसका केवल टेंशन किस बात का, क्योंकि मेरे को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. Then only I will get 5%. Right? नहीं, and not to be noted here. Right? But when he reaches out to district magistrate, then DM will inquire, question, where is social impact assessment report, where is environmental impact assessment report, because district magistrate knows something of everything. Yes na, its impact on farmers, its impact on like rural agrarian population. Yes na, right. So that wisdom should be reflected in your answer, something of everything. Yes na, not everything. राइट. यहां आपको बताया जा रहा है कि बस मतलब जो मिल रहा है उसको बटोरते जाइए, राइट. यही आखिरी मौका है, डुबकी लगाइए, नहीं तो फिर, राइट, है ना. तो व्हाट आई मीन टू से कि यही है तरीका. इट्स सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना. अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है. जैसे जनरल स्टडीज में यू आर सजेस्टेड टू राइट टू मेनी फैक्ट्स, कि एवरी इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट विद सम रिपोर्ट, सम डेटा, सम फैक्ट. अब डेटा फैक्ट्स के पीछे आप जो है अपना पूरा एनर्जी मोटिवेशन वेस्ट किए हुए, राइट. एंड डिस्पाइट राइटिंग विद फुल ऑफ डेटा, फैक्ट्स, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, स्टूडेंट्स आर गेटिंग डबल डिजिट स्कोर इन जनरल स्टडीज. कम से कम वो मिस्टेक इधर नहीं करिएगा प्लीज, है ना. That mistake should not be committed in sociology, right, or essay. It's not about only data and facts, right. A right balance of concept, theory and fact. A right balancing होना चाहिए, concept, theory and facts का होना चाहिए तीनों. Yes ना, in GS also concepts and facts, right balancing, isn't it? अब चूंकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ज्यादा बिजनेस है, कोचिंग की अपनी मजबूरियां भी हैं,
राइट तो क्वांटिटेटिव फोकस ज्यादा है, राइट कोचिंग में क्वांटिटेटिव फोकस ज्यादा है देन qualitative focus, isn't it? But you should be intelligent enough, right? Over the period of time, coaching is just a means. Classes are just a means. You should be, like intelligent enough to decide and make decision when it comes to problem solution. Don't take problem solution. मतलब आप लोग ऐसा मानते हैं ना प्रॉब्लम सोल्यूशन, बस पान के दुकान पे ही आंसर लिखने लगते, आंसर डिस्कस करने लगते, है ना? मतलब पॉपुलर जूस पी रहे हैं वहीं पे आंसर लिख रहे हैं, अरे नहीं, राइट बहुत स्पिरिचुअल एक्ट के बाद जो है ना, दैट रिलेटिव परफेक्शन विल कम टू राइट अ गुड आंसर, इजंट इट? आज इसको ऐसा प्रोसेस बना दिया गया है ना? पहले लर्निंग करिए, अच्छा रिवीजन करिए, है ना? गिव yourself, like time, right, to develop wisdom through revision, reorganization, and बिल्कुल you should be efficient enough, in reorganizing. अभी के बाद अगर जितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना रीऑर्गेनाइज करने में, है ना, कि स्टिकी नोट लगाया, 10 पॉइंट लिख दिया, 5 पॉइंट्स लिख दिया, डायरी रखा हुआ है एक छोटा, डायरी में थिंकर्स रिवाइज कर रहे हैं, 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स इस टॉपिक, 15 पॉइंट्स इस टॉपिक. अब जितना इस पे जाओगे ना, राइट, यू विल इंटरनलाइज थिंग्स, इजंट इट? यू विल बी अकस्टम्ड टू these topics, these thinkers, isn't it? Getting up and you will start reflecting, yes ना? तो ये ओरिएंटेशन रखिए, इसको प्रॉब्लम मान के अब नहीं. देखिए एक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है, अब आगे इसको और मैच्योर करना है आपको. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस ना? राइट. सब कुछ अगर इधर से ही होना होता पोडियम से तो फिर क्या ही बात थी, यस ना? राइट. तो ऐसा डेवलप करिए. बहुत सारे बच्चे, हालांकि मेरी बात फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, मैं ओरिएंटेशन क्लास में भी बोला था, ओरिएंटेशन क्लास में भी मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था, यस ना? एंड मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन ओरिएंटेशन क्लास. मेरे को लगा कि यार समझे नहीं, जबकि पूरा ओरिएंटेशन मेरा ज्ञान ही था, यस ना? राइट. तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखने के बाद बच्चों को समझ में आता है, बच्चे बताते भी हैं कि सर, है ना, कि इस बार हो रहा है, हो जाएगा. बहुत सारे बच्चों को ऐसा गट फीलिंग आ जाता है कि यस सर हो रहा है, मैं कर रहा हूं, और हो भी जाता है, यस ना? तो ऐसा आपको सेल्फ फील होना चाहिए. कोई आपको रिटर्न में नहीं देगा कि हाँ तुम्हारा हो रहा है, राइट. वो सेल्फ, है ना, रियलाइजेशन होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन, तो उसका रियलाइजेशन आप ही को होगा ना. अरे यस और नो? बाकी लोग तो केवल प्रभावित होंगे आपसे, यस ना? रियलाइजेशन तो आपको होगा ना, राइट. बाकी लोग को ये है कि देखना चाहिए आप एजुकेटेड हैं, तो आपको एजिटेटेड भी होना है, यस ना? राइट. और उस एजुकेशन का रिफ्लेक्शन आपके पर्सनालिटी में, आपके थॉट में, आपके बिहेवियर में, है ना, दिखना चाहिए, राइट. और कहाँ दिखना चाहिए? केवल टेस्ट पेपर में नहीं, आपके फैमिली में, आपके किनशिप में. अब ये नहीं कि फैमिली किनशिप में हर जगह प्रॉब्लम होता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है फैमिली किनशिप में, राइट. पीपल आर एंटागनाइज्ड टुडे, राइट, फॉर रिसोर्सेस और मेनी अदर थिंग्स, इजंट इट? अब यू आर एजुकेटेड, आप उस प्रॉब्लम में और एक माचिस लेकर जा रहे हैं कि लो ये मेरे तरफ से, राइट. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. यू शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंटेशन होना चाहिए, यस और नो? आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू द एक्सटेंट दैट यू कैन डू, यस ना? क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनने जा रहे हैं ना. अब पता चल रहा है कि आप भी उसी क्राउड के पार्ट बन रहे हैं, राइट. तो ये छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन, रियलाइजेशन आपको लाइफ में होना चाहिए, isn't it, in due course of preparation. This is not only about, this is not only about, I have seen many students, as I say earlier also, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बड़ा पर्सनल, है ना, familial type, right, and on many occasions they discuss things and all. और मैंने देखा coming from troubled families, फैमिली में ट्रबल है, प्रॉब्लम है, एंटागनिज्म है, एंड वो सब कर लिए, इस प्रोसेस में निकल गए, राइट. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, कमिंग फ्रॉम फैमिली किनशिप, जहां ट्रबल है, प्रॉब्लम है, एंटागनिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहां से निकल के हम कुछ अलग कर पाए,
यस ना, बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये ओरिएंटेशन होना चाहिए, हमारा ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। गेटिंग अ पॉइंट। और आपका सिविल सर्विसेज में जाना इटसेल्फ इज अ बिग रिवार्ड एंड सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली एंड किन से। यस ना, जब ही आपका रिजल्ट आता है आप तो पूरा महासागर बन जाते हैं। फिर ये जितना प्रॉब्लम और आपस में लड़ रहे लोग हैं ना, वो सब आप में समाहित होना चाहेंगे। राइट, राइट, है ना, राइट। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। भाई ठीक है, सब लोग आखिर में जाके तो वहीं, गंगा जी भी वहीं जाती हैं, समाहित होती हैं ना भाई महासागर में। तो ये जब भी रिजल्ट आता है ना, तो सभी लोग, जितना एंटेगनिज्म है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो अपने आप सॉल्व होने लगता है। यस ना। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप समझ लीजिए कि आप कैसे महासागर बनने वाले हैं, जहां हर तरीके का एंटेगनिज्म जो है सेटल हो जाएगा अपने आप, इजंट इट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, राइट। मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था कि भाई टीचर्स क्या हैं, लाइक रेन ड्रॉप, पानी की बूंदे हैं। यस ना, राइट। कोचिंग दरिया है, राइट। और आप क्या हैं? हाँ, आप महासागर हैं। यस ना, समंदर हैं आप, राइट। हाँ, राइट। समंदर हैं, समंदर, राइट। तो समंदर बनने के का जो प्रक्रिया है ना, राइट, उसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। यस ना, राइट। आपको इन बूंदों से भी अलग होना है और दरिया से तो अलग होना ही होना है। यस ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अरे यस ना, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई बोल भी रहा था मैं इसलिए टर्म यूज करता हूं कि दिस इज अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, राइट। लर्निंग, रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्शन, परफॉर्मेंस, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यस ना, राइट। कभी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि बस अब हो गए, अब नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टाइप। यस ना, राइट। तो ऐसा नहीं। यस, हाँ, ह्यूमन टच, ह्यूमन टच आएगा ना आंसर्स में, बाय बाय रिफ्लेक्टिंग मोर ऑन डिफरेंट subjects, different topics, concepts and facts related to those topics. Yes ना, right. Getting a point। मतलब ये जितना सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, ऑल मीन फॉर ह्यूमंस। अरे यस ना, अगर हम ह्यूमन ना हो तो इसका कोई मतलब है, कोई महत्ता है इसकी? कुछ नहीं है, राइट। तो हम ह्यूमंस तो रहना चाहिए ना आंसर में। अरे यस और नो। पॉवर्टी का अब कोई बांट लेते हैं। आजकल क्या है, आजकल तो बच्चे बताते हैं एक सब्जेक्ट में 5 टीचर्स, इकोनॉमिक्स में, और सब अपना अपना बांट लिए, कंपार्टमेंटलाइज कर लिए। एथिक्स में बच्चे बताते हैं कि 4 टीचर आए, किसी ने प्रोबेबिलिटी लेकर कोई भाग गया, कोई अकाउंटेबिलिटी लेकर भाग गया, है ना, कोई इंटेग्रिटी के साथ भाग रहा है कोई। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको एक साथ लाना, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, है ना, सबको एक साथ लाना, वो कंपार्टमेंटलाइज मैनर में नहीं। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? पॉवर्टी है तो ये नहीं कि पॉवर्टी, अब इधर सिलेबस में आपकी कहां मेंशन है पॉवर्टी? जीएस में पॉवर्टी एंड रिलेटेड इशूज एक टॉपिक है ना, हाँ, जीएस 3 में मान लीजिए है। अब ये नहीं कि जीएस 3 है तो केवल इकोनॉमिक एंगल से हम पॉवर्टी को देख रहे हैं, फिर तो भैया हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, है ना, या होने वाले हैं, फिर तो सारा मामला ही शॉर्टेड है। यस ना, राइट। पॉवर्टी को ऐसे नहीं, केवल इकोनॉमिक एंगल से नहीं, पॉवर्टी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, पॉवर्टी सोशल फैक्टर्स, यस ना, राइट। पॉवर्टी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, लिमिटेशंस, इजंट इट? गेटिंग अ पॉइंट? जब पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन तो देयर ऑल्सो, लाइक governance, policies, programs, international cooperation for poverty elevation। आज भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कॉपरेशन है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी, गेट फंड्स। यस ना, पॉवर्टी, हाउ नेचुरल डिजास्टर इज कॉज ऑफ पॉवर्टी, हाउ कंट्रोलिंग नेचुरल डिजास्टर विल हैव इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी,
internal security, Naxalism, terrorism, Maoism, right, has also pauperized the people. Yes or no? Getting your point. Lack of probity in bureaucracy, governance, implementation of policies and programs, lack of probity, that has also caused poverty. Getting your point. Gender dimension of poverty, caste dimension of poverty. Yes, na? Those are also important, right? Why tribals are pauperized? है ना? आदि महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, but tribals are still, majority pauperized. Yes, na? So this is reflecting on multiple डायमेंशन. केवल कंपार्टमेंटलाइज करके लर्निंग के समय कंपार्टमेंटलाइजेशन इज कंपल्सन. लर्निंग के समय क्लासेस में, ठीक है ना, क्लास में आप पढ़िए कंपार्टमेंटलाइज, लेकिन बियॉन्ड दैट व्हाइल डूइंग रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू go beyond that compartment. You have to optimize all your knowledge matrix, isn't it? You have to reflect your wisdom by doing correlation, application, isn't it? Backward, forward linkages, etc. ये सब काम, और ये सब स्टडी टेबल पे होता है. इसके लिए मतलब बार बार मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन. प्रॉब्लम आपके साथ भी नहीं है. जो ओवरऑल चेंजेस हुए ना, यूपीएससी स्टिल इन 2G वर्ल्ड, 1G वर्ल्ड. सिलेबस जब आया था तो 2G था हमारे यहाँ, राइट? एंड टुडे आज क्या हो गए, 5G में आ गए. एंड 5G ये जो है, ये डिस्ट्रैक्शन को, मतलब हम ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि इस डिस्ट्रैक्शन को जो सबसे ज्यादा हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसको अपने पॉकेट में लेके चलते हैं. हम डेयरिंग भी हैं, यस ना, राइट? मतलब हम डेयर करते हैं कि चलो तुम डिस्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हें हम अपने साथ लेकर चलेंगे. और एवरी टाइम वी स्ट्रगल, यस ना, राइट? तो मैं तो लेकर चलता हूं क्योंकि मेरे को पेपर रिव्यू करना होता है कुछ राइट. लेकिन आप इससे दूर हो सकते हैं, आप इससे दूर हो सकते हैं, है ना, राइट? A4 पेपर, अभी पेपर एग्जाम किस पर, A4 पेपर पर है. तो A4 पेपर के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, जितना दोस्ती उससे करेंगे, राइट, पेपर पे, राइट, उतना ही आप कंफर्टेबल रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, राइट? नहीं तो आप पूरा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं और सडनली आप चाहेंगे कि A4 पेपर, है ना, तो नहीं, फिर एंटागनिज्म हो जाएगा. यस ना, राइट? टू बी अफेक्शनेट यू विल हैव टू स्पेंड टाइम, राइट? तो टाइम स्पेंड करिए, है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके. रिफ्लेक्शन तभी बढ़ेगा जब डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल होगा. अभी आंसर राइटिंग इतना चैलेंज नहीं था मैन, चैलेंज नहीं था पहले, राइट? अगर मैं लर्न हूं, मुझे मतलब आई हैव लर्नड एवरीथिंग इन डिटेल, आई नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, देन व्हाई कांट आई राइट? मैं लिख सकता हूं. और अगर नहीं लिख रहा हूं तो दैट डिस्ट्रैक्शन, है ना, लैक ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्ट्रैक्शन. यस ना? तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेंगे, रिफ्लेक्टिव एबिलिटी विल enhance, reflexivity will enhance. Yes na? And reflexivity enhance hoga, you will easily write answers. Yes na? So here onward, try to, yes na? Right. Yes, I hope understood something, yeah? कुछ समझ में आया? Right. हाँ? नहीं, I don't believe. ठीक है, जावेद अख्तर साहब का सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अब उनका भी जो काम है वो अपना काम करते हैं. फिर जावेद अख्तर साहब से बाकी लोगों ने इसको काफी पॉपुलर कर दिया, तो उनका भी काम चल गया. यस ना? एक हिंदी लिटरेचर का टीचर हिंदी लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते आज बिलियनियर की कैटेगरी में आ गए, तो वो तजुर्बे वाली बात ही है. तो उनका भी, लेकिन आपका केवल तजुर्बा से काम नहीं चलेगा ना, आपका तजुर्बा से काम नहीं चलेगा, आपको अचीवमेंट के लिए जाना है. यस ना? यू विल हैव टू अचीव समथिंग. यस ना? और जब फर्स्ट जनरेशन हम होते हैं ना, राइट, तो चैलेंज तो होता है, लेकिन इस चैलेंज को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अचीवमेंट होगा, अचीवमेंट होगा. यस ना? राइट? बस मतलब उस अचीवमेंट के लिए, राइट, यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग इन प्रेजेंट टाइम, तो अचीवमेंट होगा. कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ एस्पिरेंट, बीइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ एस्पिरेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, राइट? आपको मतलब दूसरे को देखना ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. मेरा कंडीशन, मेरा सिचुएशन इज ऑल डिफरेंट, मेरा डिफरेंट है. अभी मैंने बताया उस दिन एक आपकी क्लास के बाद बैठे हुए थे, वो बाहर ही बैठे हुए थे, बाद में मेरे को पता चला कि अरे
ये चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली, राइट, अर्लियर वाज इन गुजरात, बट गुजरात से सभी लोग अभी आ गए हैं कहाँ, दिल्ली, राइट। गुजरात के बॉस आ गए हैं तो बाकी लोग भी आ गए हैं। डॉटर के लिए ही वॉज कंसर्न कि विकास, मतलब बात करते जब पता चला कि ही इज माई सीनियर ऑल्सो दोज डेज, मतलब माई सीनियर वॉज जूनियर टू हिम, माई सीनियर अभी सेक्रेटरी हैं कहीं जिनके साथ मैं रहता था एक, तो उनके मतलब जूनियर थे फिर। तो ऐसा कि विकास द बिगेस्ट चैलेंज आज के समय में है कि फॉर अस देयर वाज नो चांस एंड चॉइस टू फेल और फेल्योर, फेल्योर हमारे चॉइस में चांस था ही नहीं, मतलब वी हैड नो चॉइस टू फेल, है ना, हमारे पास मतलब चॉइस ही नहीं था कि हम ये नहीं करें, नहीं करें तो क्या करें, मतलब कुछ उसके बियॉन्ड, कुछ उसके अलावा कुछ था ही नहीं, है ना। और अभी मेरे बच्चों के सामने नाउ आई मीन कमिश्नरेट एंड वी हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ IT, income tax is elite service, you know, so थोड़ा elite life and all, isn't it? So I don't see that a strong motivation in my children, isn't it? और इनके सामने ये रहता है कि ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाए, वो कर लेंगे, काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो उनका ये था कि आप इसको मोटिवेट करिए कि इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट, एटलीस्ट सेकेंड जनरेशन शुड बी देयर इन सर्विसेज, है ना, क्योंकि हमने तो बिल्कुल, ही इज फ्रॉम बिजनौर, यू नो, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, कि जहाँ से हम आए वहाँ कुछ वही नहीं था, बस सामान चावल दाल लेकर आते थे दिल्ली में, बनाकर खाते थे और पढ़ाई करते थे, है ना। तो वैसा ही मतलब आपका भी कि कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा, फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट है, मेरे को प्रूव करना है, आई हैव टू अचीव, है ना, केवल तजुर्बा लेने हम यहाँ नहीं आए, मतलब तजुर्बा तो हमारे पास ऑलरेडी है बहुत, है ना, राइट, सर्वाइव करने का, यस ना। तो ऐसा स्ट्रांग मोटिवेशन रखिए, है ना, राइट, और ऑनेस्ट रहिएगा ना, सिंसियरिटी से काम करते रहिएगा, हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। अचीवमेंट मतलब इन सिविल सर्विसेज इज नॉट अ बिग डील प्रोवाइडेड कि यू कमिट योर सेल्फ टू दिस प्रोसेस। आप अपने को कमिट तो करिए और क्वेश्चन भी करिए कि एम आई कमिटेड, एम आई कमिटेड। एंड हमेशा मतलब जैसे मैंने एक बात आपको बताई, पहले भी बताया कि सिलेबस इज गॉड, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, डिफरेंट अवतार्स ऑफ गॉड, यस ना। तो एकदम रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन ऑन दोज टॉपिक्स, राइट, which avatars of different avatars were popular in different eras, yes ना, अरे yes और no, कभी गॉड इंद्र वरुण बहुत पूजे जाते थे, आज कोई और गॉड एंड गॉडेस, यस ना। तो सिमिलरली अब कौन से अवतार नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उसका रिफ्लेक्शन प्रीवियस ईयर से मिल जाता है, यस ना। तो एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ PYQ एंड NYQ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NYQ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, यस ना। इसमें भी यू शुड बी कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी, जब मैं भी पेपर दे रहा था हमें कहीं से किसी ने नहीं बताया कि NYQ क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या आने वाला होगा, आई न्यू कि ये आने वाला है, यस ना। पढ़ाई ऐसी और इंटरेस्ट ऐसा कि बिल्कुल हमें रिफ्लेक्ट होने लगे कि ओके फाइन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, these question may be asked, this question has been asked, these question may be asked, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यस ना। और जो NYQ हमारा होगा उसमें 70% कंफर्टेबिलिटी, 30% तो मैनेज हो जाता है, 30% मैनेज होता है। कभी भी 100% का ओरिएंटेशन नहीं रखिए एग्जाम में कि 100% एज पर माई एक्सपेक्टेशन, नो, 60-70%, 70% आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ गया, 30% इज कॉम्पिटिशन, 30% क्या है, कॉम्पिटिशन है, उसको आपको एग्जाम सिचुएशन में यू शुड हैव गट्स टू मैनेज, यस ना, राइट, गेटिंग अ पॉइंट नॉट। तो PYQ NYQ, अब स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन रहेगा ना, मतलब इफ यू ट्रीट सिलेबस एज अ गॉड, डिफरेंट टॉपिक्स एज अवतार्स ऑफ गॉड, तो NYQ आपको दिखने लगेगा, यस ना, राइट, अगला अवतार क्या होने वाले हैं समझ में आ जाएगा, राइट। सो अंडरस्टूड आई गेस, या। तो इस ओरिएंटेशन से पढ़ाई करिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल, हाँ, राइट, सेलिब्रेट करिए इसको, इस प्रोसेस को भी सेलिब्रेट करिए, इसको ऐसा नहीं मानिए कि किसी ने इम्पोज किया हो, ये मेरा चॉइस है, राइट, मेरा चॉइस है, तो मेरे को इसमें सेलिब्रेट करना है, यस ना।
राइट, अंडरस्टूड आई गेस, या यस यस. यस, हो जाएगा. हो जाएगा. राइट, कर लेंगे आप, कर लेंगे. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए अब आपके लिए, है ना. राइट, आपका नाम होगा तो थोड़ा मेरा नाम हो ही जाएगा. राइट, और होता ही है ना. होप कि आप में से कोई टॉपर बने, और किसी टीचर के लिए टॉपर मोक्षा का मतलब इट्स लाइक मोक्षा, यू नो. राइट, और अभी तक कोई सोशियोलॉजी से टॉपर बना नहीं है. और लास्ट ईयर ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ लो स्कोर इन जीएस कुड नॉट. अदरवाइज सोशियोलॉजी में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे लास्ट ईयर भी, उसके पहले भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स को. राइट, जो विजडम डेवलप कर लेते हैं, मेरे कारण आते हैं ऐसा नहीं है. मैंने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, लर्निंग, विजडम डेवलप हो गया, मार्क्स आ जाएगा. यस ना. तो आप में से कोई टॉपर बने. राइट, बाकी मैं तो यहाँ हूँ ही. राइट. जब आप एग्जाम क्रैक करके आएंगे तो घर पे बैठ के खाना भी खाएंगे आपके साथ. आपके रास्ते में ही मेरा घर है. हाँ? लबासना में नहीं जा सका, लेकिन ड्रीम था कि तुम्हारे आसपास ही रहूंगा. तो साईं की कृपा और काम, राइट, थ्रू आउट. और इसी तरीके से बस ये है कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है टीचिंग का, जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट किया जाए. राइट, कंपल्सन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रहते हैं यहाँ अभी भी बहुत सारा. कल भी मैंने इनको मना किया था कि भैया आज क्लास रखना, इवनिंग में भी, फेयरवेल बाद में कर लेना. इन्होंने कहा कि नहीं, मृत्युंजय सर ने बोला कि फेयरवेल भी हो जाएगा. तो बोला ठीक है, हो जाएगा. तो एडजस्ट करना होता है एट टाइम्स. राइट, और इस ओआरएन में मतलब बिना कॉरपोरेट सपोर्ट के टीचर्स के लिए बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन मैंने अभी तक अपने को, है ना, उस दुनिया से अलग करके रखा हुआ है. और इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप लंबे समय तक बच्चों से कनेक्ट रहते हैं. अभी भी यूजीसी का रिजल्ट आया तो कितने ही बच्चों का यूजीसी नेट हो गया. इस बार जेआरएफ हो गया कुछ बच्चों का. तो और सबका ये लगता है कि लास्ट ईयर भी कई बच्चों का जेआरएफ हो गया था. तो मतलब कंट्रीब्यूशन, अब वो ऐसे बच्चे जो 2022 में थे मेरे साथ, इस बार सब यूजीसी नेट के लिए आ गए कि सर बताइए क्या. फिर मेरी जो किताब है पब्लिश बहुत पहले हुई थी, फिर वो बुक भी मैंने दिया यूजीसी नेट के लिए. और मैं अपना पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जब बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है. आज भी अभी भी किसी का मेरे पास थीसिस रखा हुआ है. वो स्टूडेंट है 2000 आई गेस 19 या 20 का. अभी ही इज डूइंग पीएचडी ऑन अनटचेबिलिटी इन जापान. जापान में भी अनटचेबिलिटी है, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी इन जापान. राइट, तो उसका थीसिस मैंने बोला कि यार अभी बैचेज कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो आई विल रीड योर थीसिस, और जो भी सजेशन देना होगा आई विल गिव सजेशन, है ना. बिफोर फाइनल सबमिशन उसका जून में है, तो अप्रैल वगैरह में. तो अब 19 का स्टूडेंट है, मना भी कर सकता हूँ मैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे को लगा नहीं, करता हूँ, उससे मेरी भी लर्निंग हो जाएगी कुछ. राइट, एवरी टाइम अ टीचर सॉल्व अ प्रॉब्लम, ही लर्न समथिंग, यू नो, ही गेट सम न्यू इनसाइट्स व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम. यस ना. तो आप भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ओरिएंटेशन रखिए. जैसे मैंने कहा, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंटागनिज्म, है ना, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस. यू विल हैव टू स्टैंड अपार्ट, यू विल हैव टू स्टैंड अपार्ट. उससे आपको अलग खड़ा होना है ना. राइट, ठीक है, अंडरस्टूड आई गेस. या ओके, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट. करिए, अच्छा होगा, हो जाएगा. राइट, हो जाएगा. प्रॉब्लम्स के साथ कई बार पहले बोला मैंने कि स्पेंड टाइम विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करिए.
सॉल्यूशन निकल जाता है ना? प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्यूशन नहीं. यस और नो? अरे यस ना? राइट. ओके, गुड लक. गॉड ब्लेस यू ऑल. साई ब्लेस यू.